Hello students, in this video lecture we will study about Betatron. Now this Betatron was designed by D.W. Kurtz in 1941. So he built the first successful machine for producing high energy electrons. So this machine could accelerate your electrons from 2 million electron volts to 250 million electron volts. So Betatron, as the name indicates, it is used for accelerating your beta particles, which are also known as your electrons. So Betatron, it accelerates electrons by using a changing magnetic field which produces an induced EMF on the circular motion of electrons, and due to this induced EMF your electron will be accelerated. So Betatron is also known as your induction electron accelerator, and in Betatron electron will move in a fixed orbit of constant radius. So now we will talk about the construction of Betatron. So here you are seeing two figures, figure 1 and figure 2. In figure 1 we see the side view of Betatron, and figure 2 represents the top view of Betatron. So Betatron, it accelerates the electron by a changing magnetic field which is represented by an electromagnet. So in figure 1, the top region and the bottom region, these are representing your electromagnet, and here a magnetic core is wrapped around a coil in which we will pass an alternating current. Now when this current will increase or decrease, the magnetic flux will also change. So this Betatron, it consists of a donut shaped vacuum chamber which is arranged between the pole pieces of an electromagnet. So these are your donut shaped vacuum chamber which are placed between the pole pieces of an electromagnet. Donut is something like you have the inner tube of bicycle tire. So it is in the shape of donut. So these donuts are placed between the pole pieces of an electromagnet, and this donut chamber is made up of glass and its inner surface is coated with silver, and electrons, they revolve inside this donut shaped chamber. So the electron revolves or accelerates in this donut shaped structure. Now here in figure 1, the lines, they represent the magnetic lines which are going from pole 1 to pole 2. So in this donut shaped chamber, the electron is injected from one side, then it starts revolving in this structure, and when it attains the maximum energy, then it is ejected out
from the other end so that we may perform our nuclear experiment. Now in this betatron, the changing magnetic field does many things. First, in this case, the magnetic field which we are applying, it is applied perpendicular to the plane of the electron orbit. So whenever a magnetic field is applied perpendicular to the plane of a charged particle, it makes that charged particle move in circular path. Or we can say the charged particle will experience the Lorentz force, which will provide the necessary centripetal force to make the charged particle move in circular orbit. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कराती है इन दी डोनट शेप्ड वैक्यूम चैम्बर. और जो लॉरेंट्स फोर्स है वो हमारा क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल में मूव करता रहे. और जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी चेंज हो रही है, द ऑल्टरनेटिंग और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या करती है, इट गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट विल प्रोड्यूस एन EMF. और ये जो EMF है, इट विल प्रोवाइड एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके एक्सेलरेट हो जाएंगे इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है. और जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इट प्रोवाइड्स अस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसकी वजह से हमारा जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट होता है. एंड व्हेन दैट पार्टिकल अटेन्स मैक्सिमम एनर्जी, इट इज़ टेकन आउट ऑफ द ऑर्बिट टू परफॉर्म ए न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट. तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम इसमें कि हाउ डज दिस बीटाट्रॉन वर्क्स. तो इसमें हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स को आप एक पॉइंट से इंजेक्ट कर देते हो चैम्बर में बाय एन इलेक्ट्रॉन गन. और जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड, इसको कब इंजेक्ट करते हो, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड जस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो वैल्यू. जब ये जीरो वैल्यू से इंक्रीज होना शुरू करेगी, उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट कर देंगे. एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड विल वेरी लाइक योर साइनोसॉइडल वोल्टेज. एक साइन वेव की तरह ये आपकी वेरी करेगी. तो जब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो क्या होएगा, फ्लक्स भी आपका चेंज होएगा और एक EMF आपका इंड्यूस्ड हो जाएगा इन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट. तो ये जो करंट है, दिस विल बी सिमिलर टू द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल एंड इट विल लीड टू द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. And we can say that it will move with greater velocity. और जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाएगी, उस समय जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी मैक्सिमम हो जाएगी. सो उस समय पे हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर लेंगे टू हिट आवर टारगेट एंड परफॉर्म द न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट. तो स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी वर्किंग ऑफ बीटाट्रॉन. अब हम इसमें देखेंगे हमारी थ्योरी ऑफ बीटाट्रॉन. इसमें
थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहता है कि बीटाट्रॉन हमारा कैसे वर्क करता है। तो बीटाट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन हैं दोज आर एक्सेलरेटेड बाय ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मेंटेन्ड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट बाय अप्लाइंग ए मैग्नेटिक field perpendicular to the plane of electron orbit। तो इसमें देखिए सपोज हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि एक सर्कुलर पाथ में आपका मूव कर रहा है और हमने इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एंड लेट फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द ऑर्बिट। फाई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया जो कि ऑर्बिट के साथ लिंक्ड है। सो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ऑर्बिट ये कितना हो जाएगा डी फाई बाय डी टी। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड विद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ये कितना हो जाएगा, हमारे को ये एक्सप्रेशन पता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। सो वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन इन वन रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू EMF। ये आपका E इज दी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड E कैपिटल E आपका EMF हो गया, तो वर्क डन हो जाएगा E इंटू E। तो इसमें हम E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो ये वर्क डन हमारे पास आ गया माइनस E डी फाई बाय डी टी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। सो इफ F इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, तो अगेन वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहेगा और ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस कितना है आपका 2 पाई आर, तो वर्क डन कितना हो गया F इंटू 2 पाई आर। सो 2 और 3 को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, F इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू माइनस E डी फाई बाय डी टी। तो F के लिए आपकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस E अपॉन 2 पाई आर डी फाई बाई डी टी, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 4। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो क्या होएगा, इट विल ट्राई टू इंक्रीज इट्स ऑर्बिट ऑल्सो। पर बीटाट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्टेबल ऑर्बिट ऑफ कांस्टेंट रेडियस में मूव करता है। तो उसके लिए फिर हमारे को क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, इट मूव्स इन ए स्टेबल ऑर्बिट ऑफ कांस्टेंट रेडियस। सो ड्यू टू ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट प्लेन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा B इंटू वी, आपने पढ़ा हुआ है BQV। तो E जो है डेट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये जो आपका फोर्स है लॉरेंट्ज फोर्स, यही आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर पाथ में मूव करता रहे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू b इंटू वी। तो इस अब हम अगर हमने मोमेंटम निकालना है इस केस में, तो मोमेंटम कितना आ जाएगा m इंटू वी। इस इक्वेशन में आपकी v से v कैंसिल हो गया, तो mv कितना आ गया आपके पास b इंटू ई इंटू आर। सो टेंजेंशियल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ये कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो डी पी अपॉन डी टी कितना आ गया, ई आर डी बी अपॉन डी टी। तो अगर हमारे को स्टेबल ऑर्बिट चाहिए होता है कांस्टेंट रेडियस के लिए, तो जो नेट टेंजेंशियल फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो आपका 0 होना चाहिए। तो हम इक्वेशन 4 और 6 को क्लब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई डी अपॉन 2 पाई आर डी फाई बाई डी टी प्लस ई आर डी बी अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू 0। तो डी फाई बाई डी टी कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी। तो डी टी से ये आपके पास कितना आ गया, डी फाई इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे
फ्रॉम 0 to phi एंड 0 to b। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, phi इज इक्वल टू 2 pi r स्क्वायर इंटू b। इससे हमारे पास b की वैल्यू निकल आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू phi अपॉन 2 pi r स्क्वायर। नाउ if b dash is the average magnetic flux density over the whole area of the orbit, ये जो हमने आपकी फिगर शो करी थी ओवर दी होल एरिया ऑफ दी ऑर्बिट, ये आपका इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। तो बी डैश कितना आ जाएगा, 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब आप इक्वेशन 7 और 8 को क्लब कर दीजिए, इससे बी में कितना आ गया, हाफ ऑफ बी डैश। सो if we want to accelerate our electron in circular orbit of constant radius, so then in that case the magnetic field which we have applied perpendicular to the orbit's plane, it should be non-uniform and it should be in such a way that at any instant the magnetic field at the orbit, this is equal to हाफ ऑफ दी एवरेज मैग्नेटिक फील्ड ओवर दी ऑर्बिट। ये जो बी डैश लिया है ये आपका एवरेज मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू हाफ दी एवरेज मैग्नेटिक फील्ड ओवर दी ऑर्बिट। सो दिस इज नोन एज योर बीटाट्रॉन कंडीशन। So I think you have understood what is Betatron, its principle, construction and working. Even if you have any doubt, then you are free to ask me.